So today we'll be dealing with the conceptual point of complaints under chapter 15. So first we come on the provision of the Bayer Act. Section 200 says examination of complainant. A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall, mark shall, it's a mandatory provision, examine upon oath the complainant and witnesses present. Examination shall be on what? It shall be on oath. So mark that. Next, the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant, witnesses, and also by the magistrate. So mark this point, that signed by the complainant and witnesses and also by the magistrate, and specially focus on that substance of the examination shall be reduced to writing. Okay, mark also this. The first part of section 200 is very important. Then comes the proviso. Provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and witnesses if a public servant acting or purporting to act and discharge of his official duty, or a court has made a complaint. So in that situation, the magistrate need not mandatorily record the substance of examination on oath of the statement of public servant and his witnesses, etc. So the proviso must be kept in mind as to who are the persons who need not be examined under section 200. All right, and the second person is under proviso B of the same section. If the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192, then the proviso further provides that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 192, after examining the complainant and the witnesses, the latter magistrate need not re-examine them. It means, if suppose that you went to the first magistrate, you are the complainant along with your witnesses, the magistrate concerned took your statements, he recorded your statements, reduced them to the substance of such examination, then your statements were recorded on oath, he complied with all the formalities that section 200 requires, then takes the case file and forwards it to the proper magistrate who at that time has the jurisdiction for trial into the case that you have complained of. In this situation, the proviso works, the last proviso. Then the latter magistrate need not re-examine you all over again because you have been examined by the magistrate in the first instance itself. All right. So we have to deal with first the object of law. Why section 200 requires examination? The purpose is very simple. It is to find whether the complaint is justified or frivolous. ये देखने की ज़रूरत है कि कंप्लेंट आपने क्या कहते हैं किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन पे की है, ऐसे तो नहीं कि आप किसी पार्टी को हैरास करने के लिए ऐसा कर रहे हो, एक ये पता करने के लिए. इसीलिए 200 में एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है. दूसरी पॉइंट पे जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज व्हेन यू लॉज एन एफआईआर, तो पुलिस रिपोर्ट आती है. अब उसमें फाइनल रिपोर्ट आ सकती है, चार्जशीट आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो. तो उसमें उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होती है, तभी रिपोर्ट फाइल होती है. लेकिन 200 में आप ये पूरा प्रोसेस बाईपास कर रहे हो. यू आर गोइंग डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट विद योर ग्रीवेंस. यू कैन अप्रोच हिम ओरली. आप ओरली कंप्लेन कर सकते हैं या राइटिंग में कंप्लेन कर सकते हैं एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D. तो ऐसे में मैजिस्ट्रेट को क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि किस बारे में क्या कहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है
उसकी वेरासिटी क्या है, उसका ट्रुथ क्या है, या आप जो कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है भी या नहीं। फ्रिवलेस तो नहीं है कि आप किसी को अननेसेसरली हरास करने के लिए कंप्लेंट का प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो आपका पर्दाफाश हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप तो फेक केस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट अवे विद दीज ट्रबल्स द लेजिस्लेचर हैज़ मैंडेटेड अपॉन द मैजिस्ट्रेट कि you will examine them on oath, the complainant, witnesses, and then जब आपने एग्जामिनेशन उनका कर लिया, then substance of examination आप राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, you'll reduce them in writing, और उस पर 3 लोगों के सिग्नेचर होंगे, कंप्लेनेंट, मैजिस्ट्रेट, कंप्लेनेंट, विटनेसेस एंड मैजिस्ट्रेट, इन 3 लोगों के सिग्नेचर होंगे। ऑलराइट, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, इसको प्री समनिंग एविडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभी प्रोसेस इशू करने से पहले हुआ है। ऑलराइट, अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने मेरली कंप्लेंट लॉन्च कर दी मैजिस्ट्रेट से डायरेक्टली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ने सीधे आपके कंप्लेंट पर संज्ञान लिया है। वो हो सकता है कि आपने कंप्लेंट लॉन्च की हो, उसने कंप्लेंट देखा और सीधे वो 156(3) का ऑर्डर दे दे, तो वहाँ पे अभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है, अभी उसने आपकी कंप्लेंट पे संज्ञान नहीं लिया है। तो संज्ञान लेना कब हुआ आपकी कंप्लेंट पे? जब वो 200 के प्रोसीजर को फॉलो करने लगता है। वो विटनेस कंप्लेन, वो आपको कहता है चलिए आपका एग्जामिनेशन होगा, अपने विटनेसेस को लाइए, सबका एग्जामिनेशन मैं करता हूँ, और फिर उसके सब्सटेंस को रिड्यूस करने लगता है राइटिंग में एग्जामिनेशन को। इन दैट सिनेरियो it will be deemed that the magistrate has already taken cognizance of an offence। तभी सेक्शन 200 कैसे शुरू होता है? अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, कंप्लेंट पे अगर वो कंप्लेंट के प्रोसीजर से कंप्लाई करने लगता है तो मैजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन कॉग्निजेंस। ये पुलिस रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा नहीं हो रहा था, वहाँ पे FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर गया या नहीं गया, फिर क्या कहते हैं पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुई, जाके फिर इन्वेस्टिगेट करो, तो वहाँ पे अभी तक पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान नहीं हुआ था। वहाँ पे तो पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान तब होगा जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ पुलिस रिपोर्ट का मटेरियल सफिशिएंट है, सो नाउ आई कैन इशू प्रोसेस। वो तो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने कंप्लेंट लॉन्च की और मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट के प्रोसीजर से सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, he is now following the procedure as laid down under 200, so magistrate shall be deemed to have taken cognizance। ठीक है, तो इस डिफरेंस का ध्यान रखिएगा कि पुलिस रिपोर्ट में कब कॉग्निजेंस होता है और कंप्लेंट का कब कॉग्निजेंस होता है, क्योंकि इससे ना मैजिस्ट्रेट के सामने का ट्रायल इफेक्ट होता है। ऑलराइट, तो एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक नेक्स्ट ग्राउंड आता है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट द मैजिस्ट्रेट नीड्स टू हैव? कितना एविडेंस होना चाहिए, क्या ऐसे एलिगेशंस होने चाहिए या क्या सब्सटेंस होना चाहिए आपकी कंप्लेंट में जो मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दे कि यस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कंप्लेंट। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम रीइटरेटिंग अगेन एंड अगेन, कि ट्रायल नहीं हुआ है, एंड यू नो बिफोर द स्टेज ऑफ ट्रायल एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता। द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैन नॉट हैपन बिफोर द स्टेज ऑफ ट्रायल। So what is the criteria that magistrate needs to see? He needs to see it as a prima facie case. Magistrate को सिर्फ इतना ही देखना है कि are the sufficient grounds present जिसके basis पे is satisfied that yes, prima facie case has been established. Legal definition of a prima facie case does not mean that the case is proved to a hilt. It means that if the allegations are presented before you, can you believe that this conclusion that the complainant is saying is possible, not that it is the only conclusion possible। मतलब कि आपने कंप्लेंट दी,
तो कंप्लेंट को पढ़ने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ऑफेंस इसमें मेड आउट हो रहा है, तो दैट इज़ हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन जो लेजिस्लेचर बात कर रहा है कि आपका एलिगेशन और सब्सटेंस और मटेरियल को पढ़ के लगता है, विटनेसेस के और एग्जामिनेशन के बाद लगता है कि येस देयर इज़ अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड, ये उसका ट्रूथ या फॉल्सहुड नहीं डिटरमाइन करता है. एट दैट स्टेज ही नीड नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ योर कंप्लेंट, और तो ट्रायल पे पता चलेगा. At that stage he only needs to determine कि after the result of the examination whether your allegations are sufficient enough कि an offense can be made out of it, जो भी allegations हैं आपके complaint में. तो उसी के basis पे मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फैक्शन होता है, जिसके बेसिस पे वो प्रोसेस इशू करेगा, चाहे अरेस्ट वारंट इशू करे या समन इशू करे. ऑलराइट, तो इस पे केस है, केस लॉ का इतना पैनिक मत करिएगा. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू देम. SV Palanitkar versus State of Bihar. In that, the Supreme Court held, in case of a complaint under section 200 of the CRPC, a magistrate can take cognizance of an offence made out, and then he has to examine the complainant and his witnesses, if any, to ascertain whether a prima facie case is made out against the accused, to issue process, so that the issue of process is prevented on a complaint which is either false or vexatious or intended only to harass. Harassment के लिए नहीं होनी चाहिए कंप्लेंट. बस ये देखना चाहिए कि yes, is the prima facie case made out after the examination. That is the only criteria that the magistrate has to see. इसीलिए आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे ओथ पे हो रहा है. उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे रेयरली एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स अंडर 164 जिसमें मे ओथ का प्रोविज़न है, उसके अलावा बहुत रेयरली आपको ओथ का कोई प्रोविज़न मिलेगा. लेकिन 200 में जैसे ही आप कंप्लेंट लाते हैं, आपका एग्जामिनेशन ही ओथ पे हो जाता है. Going further, such examination is provided in order to find out whether there is or not a sufficient ground for proceeding. The word sufficient ground used under section 203 have to be construed to mean the satisfaction of a prima facie case as is made out against the accused, and not a sufficient ground for purpose of conviction. ये मैं आपको अभी बताया कि prima facie केस को देखना है. इतना देखना है कि आफ्टर द एग्जामिनेशन जो मटेरियल मेरे सामने आ रहा है, इस पे क्या ये कंक्लूजन बन सकता है कि यस द ऑफेंस इज मेड आउट. ये नहीं कि क्या इकलौता यही कंक्लूजन बन सकता है कि ऑफेंस इज मेड आउट. इकलौता नहीं हो सकता, 4 कंक्लूजन बन रहे हो. 4 में से एक अगर ऐसा है कि यस if I believe you, then yes, there is a ground for me to proceed further. अगर मैंने आपका विश्वास कर लिया, then it means there is a ground for proceeding further. और ये कहलाता है satisfaction of prima facie case. All right. अब another case which reiterates the same law. Again, the Supreme Court in Nirmaljeet Singh versus State of West Bengal says, the section does not say that a regular trial of adjudging the truth or otherwise of the person complained against should take place at that stage. आप ट्रायल नहीं हेल्ड करते, मिनी ट्रायल नहीं हेल्ड करेंगे अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का. ठीक है, दैट इज प्रोहिबिटेड फॉर द मैजिस्ट्रेट. The section does not say that a regular trial of adjudging the truth or otherwise of the person complained against should take place at that stage. For such a person can be called upon to answer the accusation made against him only when a process has been issued and he is on trial. The Supreme Court is saying that before the accused is summoned, how can it be presumed that
ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ? नहीं हो सकता। कुछ इंस्टेंसेस हैं, जैसे जब आपका कंप्लेंट एग्जामिन हो रहा होता है, आपको प्रैक्टिकली बता दूं तो इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर द मैजिस्ट्रेट टू अलाउ द डिफेंस लॉयर टू बी देयर। मान लीजिए कंप्लेंट अक्यूज को भी पता चल गया जिसके खिलाफ आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं आप मैजिस्ट्रेट से, तो उसने अपने लॉयर को भेज दिया, तो उस स्टेज पे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अलाउंस नहीं है। मैजिस्ट्रेट हैज़ नो अथॉरिटी टू डू दैट। उस स्टेज में आपको डिफेंस का क्या कहते हैं अक्यूज का वर्जन भी रिकॉर्ड करने की केस फाइल पे कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट। यहाँ पे सिर्फ यू एंड योर विटनेसेस आर द कंसर्न, उन्हीं को देखा जाएगा। अभी अक्यूज सीन में नहीं आता है। अक्यूज सीन में कब आता है? जब प्रोसेस इशू होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ ऑफेंस नॉट द ऑफेंडर। ठीक है, कोई व्यक्ति ऑफेंडर है या नहीं कहाँ पता चलेगा? तो ट्रायल पे पता चलेगा, है ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that the summoning of an accused in a criminal case is a serious matter, and the order of the magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and law governing the issue. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरली अगर कोई आपके सामने कंप्लेंट लॉन्च कर दे तो आप मैजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकता कि मैकेनिकली कि हाँ क्योंकि कंप्लेंट लॉन्च हो गई है तो हाँ प्रोसेस इशू कर दो। दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। उसी को सुप्रीम कोर्ट एक्सपाउंड कर रहा है। वो कह रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन करें और प्रोसेस इशू करने का ऑर्डर दें 204 में, तो आपका ऑर्डर ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपने जो एग्जामिनेशन किया है वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि प्रॉपरली आपने अपना माइंड लगाया है। आप मैकेनिकली रोबोट की तरह कंप्लेंट आई और समन्स आपने जारी कर दिया, ऐसे नहीं काम करना है। यू हैव टू शो दैट यू टुक एन इंटरेस्ट इन द मैटर, यू हैव टू शो दैट यू अप्लाइड योर जुडिशियल माइंड। एंड व्हाट इज द जुडिशियल माइंड? एन ऑब्जेक्टिव माइंड which goes according to the facts, ठीक है, not feelings, facts के हिसाब से चलता है। Objectivity, not the subjectivity, that is the criteria for the application of the judicial mind. All right. Going further, I'll say that the order of the magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in complaint and the evidence, both oral and documentary, presented before the magistrate in support of the complaint, as would be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused. It is not that the magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence or pre-summoning evidence before summoning of accused. The magistrate has to carefully scrutinize the evidence brought on record and may even put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of allegations or otherwise, and then examine if any offense is prima facie committed by all or any of the accused. तो अब हमारे सामने क्या सिचुएशन है कि सेक्शन 200 जब देखते हैं तो हमें बताता है लेजिस्लेचर दैट शैल एग्जामिन ऑन ओथ। अब ध्यान रखे यहाँ पे क्या शब्द का यूज किया गया है? एग्जामिन देम ऑन ओथ। ये नहीं लिखा है कि रिकॉर्ड इट ऑन ओथ, एग्जामिन देम अपॉन ओथ। तो एग्जामिनेशन शब्द का यूज करने का लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है कि आप उनसे सवाल जवाब करें। आप सिर्फ एक प्रूडेंट पर्सन, एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरह ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो एक रीजनेबल या प्रॉपर माइंड के अंदर आते हैं। कि मान लीजिए कंप्लेनेंट अगर कोई बात बोल रहा है और उस पर आपके दिमाग में कोई सवाल आए कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तुम डायरेक्टली मेरे पास क्यों आए? हाँ आ सकते हो, लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या है?
तो फिर उसका वो कोई रीज़न बताता है, फिर उस रीज़न से आपके दिमाग में 2-3 सवाल और आते हैं, आप वो पूछते हैं, ये आप कर सकते हैं, दिस इज अलाउड। तभी लेजिस्लेचर हैज यूज द वर्ड एग्जामिन हेयर, नॉट मेरली द यूज द वर्ड रिकॉर्ड, क्योंकि अगर रिकॉर्ड यूज कर देता तो आपको मैकेनिकली आपको ये करना है और फिर वो आगे का प्रोसेस इशू कर देता है ना। एग्जामिन शब्द का यूज करने का पर्पस ही ये है कि आप एक प्रॉपर मैजिस्ट्रेट की तरह, एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरह एग्जामिन करें व्यक्ति को, कंप्लेनेंट को। जब आप एग्जामिनेशन देते हैं स्कूल में या कॉलेज में तो आपकी कॉपीज ढंग से चेक होती हैं, आपका आंसर देखा जाता है कि आपने क्या दिया, फिर आपके आंसर के स्टेटमेंट देखे जाते हैं ढंग से, उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है। यही सेम चीज़ है जो मैजिस्ट्रेट को भी करना होगा। हाँ, उसको इतना नहीं करना कि एविडेंस सफिशिएंट है ट्रायल के लिए, ट्रायल नहीं होल्ड करना, लेकिन प्रिलिमिनरी लेवल पे उसको वो सारे सवाल तो उठाने ही होंगे जो एक प्रूडेंट मैन के दिमाग में भी आ सकते हैं। लेट अस सपोज आपके पास कोई केस नहीं है, आप सिर्फ हरास करने के लिए किसी को सीधे मैजिस्ट्रेट के पास चले जाते हो। एक को मान लीजिए आप हरास करना चाहते हो, आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, आपके पास कोई केस नहीं है, आप कोई वेग बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये उस दिन उस जगह आया था, मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वहाँ से चला गया, फिर मैं वापस घर आया तो इसने मुझे फ़ोन पे मैसेज करके पूछा कि तुम क्यों वहाँ से चले गए हैं, मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, ऐसे बातें कर रहे हैं। आप इसको ऑफेंस बनाने की कोशिश करने लगते हो, मैजिस्ट्रेट के पास जाके मैजिस्ट्रेट के सामने बताते हो कि यही फैक्ट्स बताते हो जो मैंने बोले अभी, तो मैजिस्ट्रेट कहेगा इस पे ऑफेंस कौन सा बना भैया, इस पे तो कोई ऑफेंस नहीं बना ना। इट इज मैजिस्ट्रेट विल से कि इवन इफ आई टेक योर स्टेटमेंट्स ऑन द फेस वैल्यू, I cannot come to the conclusion that an offense has been made or even a prima facie case has been made। तो ऐसे केस में मैं कैसे प्रोसेस इशू कर दूँ? तो यहाँ पे फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट हो जाएगी, आपकी कंप्लेंट फ्रिवलेस है, इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। और ऊपर से मान लीजिए अगर आपके पास सच में क्या कहते हैं ऑफेंस आप अलेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ढंग से एग्जामिन करेगा मैजिस्ट्रेट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू एग्जामिन यू वेरी प्रॉपरली। उसको देखना होगा, उसको वो फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस एलिसिट करने होंगे जो नॉर्मली अराइज होते हैं। मान लीजिए मर्डर केस है, आप मर्डर के एक का मर्डर हो गया, आप कंप्लेनेंट की तरह सीधे मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए, तो मैजिस्ट्रेट के दिमाग में पहला सवाल यही आएगा ना, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए। चलिए आपने उसका जवाब दे दिया, फिर दूसरा सवाल ये आएगा कि मान लीजिए आपकी इसी कंप्लेंट में आने में डिले है, तुरंत नहीं आया, 3 महीने का डिले, तो फिर मैजिस्ट्रेट पूछेगा अच्छा इतना डिले क्यों हो गया, 3 महीने क्यों लग गए आपको मेरे पास आने में। अगर आपको लगता है उसका मर्डर हुआ है तो आपको तुरंत आना चाहिए था। फिर आप इक्विवोकेट करते हैं, मतलब कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देते, तो ऐसे तो और सवाल उठेंगे ना मैजिस्ट्रेट के दिमाग में। तो ही इज ऑथोराइज्ड टू आस्क दोस क्वेश्चंस। लेजिस्लेचर दैट्स व्हाई यूज द वर्ड एग्जामिन अपॉन ओथ, ओथ पे एग्जामिनेशन करेगा वो आपका। सो दैट इज व्हाई the word examine is used, not word record is used here, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, अब क्या नहीं अलाउड है मैजिस्ट्रेट को करना। अब मैजिस्ट्रेट को ये करना नहीं अलाउड है इस स्टेज पे कि वो आपका एविडेंस अप्रिशिएट करने लगे। कि मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाए जिसमें आप दिखाते हो कि ए ने मरने से पहले मुझे एक खत लिखा था और उसमें ये लिखा था कि मेरी जान को बी से खतरा है, तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो बी इसका वो है, इसका जिम्मेदार है। आप मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन की स्टेज पे उसको अप्रिशिएट करने लगा। उसने कहा यार ये राइटिंग मुझे डाउटफुल लग रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस पर, आई डोंट थिंक ये तो आप फॉर्ज भी कर सकते हैं, ये सारे सवाल ये नहीं अलाउड है। वाई? बिकॉज ये क्वेश्चंस तो ट्रायल पे आएंगे ना, आपका मटेरियल सच्चा है या झूठा है। अगर वो सीधे नहीं लग रहा तो ये तो ट्रायल पे पता चलेगा, यू विल गेट टू नो एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ट्रायल पे होगा कि वेदर योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ट्रू और फॉल्स, वेदर क्या कहते हैं, वेदर द विटनेसेस यू प्रेजेंटेड आर टेलिंग द ट्रूथ और हैव बीन ब्राइब्ड
or are uttering the falsehood because they want to extract the vengeance against the accused, बदला लेना चाहते हैं जिसको भी आप accused बना रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन में ना, इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस ये सारे आंसर्स ट्रायल पे आते हैं, ये आपको कंप्लेनेंट की स्टेज पे ही नहीं मिल जाएंगे. तो जो प्री समनिंग एविडेंस है उसको सिर्फ प्राइमा फेसाई लेवल पे देखा जाता है कि हाँ, अगर मैं आपका जितने भी मटेरियल विटनेसेस और कंप्लेंट जो आपने रिकॉर्ड पे मुझे सबमिट किए, तो एम आई इन अ पोजिशन वेयर इफ आई टेक एवरी स्टेटमेंट ऑफ योर्स ऑन अ फेस वैल्यू. तो दिस इज अ कंक्लूजन दैट आप अलग जो कर रहे हैं ऑफेंसेस, ये पॉसिबल है. ये नहीं कि ये ओनली कंक्लूजन इज पॉसिबल. ऑलराइट. सो अब एक सवाल उठता है कि क्या 200 का जो एग्जामिनेशन ओथ पे हो रहा है, क्या है सब्सटैंशियल एविडेंस है? वैसे तो ये मैटर एविडेंस का है, सीआरपीसी का नहीं. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, द स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 200 आर नॉट सब्सटैंशियल एविडेंस. ऑलराइट. वर्डिंग्स पे अगर आप गौर करेंगे तो आप सीधे समझ जाएंगे कि पहली बात, एक एडवर्सरियल ट्रायल में जब कोई भी व्यक्ति ट्रायल पे कटघरे में आके स्टेटमेंट देता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिफेंस है या ऑपोजिट पार्टी जो है वो क्रॉस एग्जामिन करती है उसको, वो उसका ट्रुथ और वेरासिटी चेक करती है ना. तो ऐसे केस में वो स्टेटमेंट्स ज़्यादा वैल्यू के होते हैं, वो एविडेंस ज़्यादा वैल्यू का होता है. यहाँ पे तो अक्यूज स्टेज पे भी नहीं आया, उसके पास ना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, ना उसको अपने वर्जन रिकॉर्ड कराने का राइट है 200 की स्टेज पे. जब तक मैजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू ना कर दे, अक्यूज्ड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दीज प्रोसीडिंग्स. जो कंप्लेंट की हो रही है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता. तो हाउ कैन दीज एविडेंस विल बी कंसिडर्ड सब्सटैंशियल एविडेंस? नहीं कंसिडर हो सकते. दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड सब्सटैंशियल एविडेंस. ये सारा सब्सटैंशियल एविडेंस और इनका रेल्म क्या होता है, ये तो एविडेंस पे आपको मेन पता चलेगा. लेकिन आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग द पॉइंट एज आई एम गोइंग फर्दर. ये ध्यान रखिएगा, द एग्जामिनेशन जो ओथ पे यहाँ पे हो रहा है कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस का, दिस इज नॉट सब्सटैंशियल एविडेंस. ऑलराइट. दूसरी चीज, मैजिस्ट्रेट सब्सटेंस रिकॉर्ड करता है एग्जामिनेशन का, सब्सटेंस रिकॉर्ड करता है एग्जामिनेशन का, नॉट एज इट इज़ नहीं रिकॉर्ड करता. तो ऐसे केस में ये भी तो हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट ने कुछ गलत चीज़ें रिकॉर्ड कर, मान लीजिए सब्सटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म होगा, समरी होगी, समरी की तरह हो सकता है, वो सारा स्टेटमेंट क्या कहते हैं कंटेक्स्ट में बिना लिए हो सकता है उसने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर दी. हो सकता है मैजिस्ट्रेट ने जो सब्सटेंस रिकॉर्ड किया है, इट बिकम्स अ टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, वो ऐसा टेक्स्ट बन गया जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. तो सब्सटेंस में वो सिर्फ मटेरियल पार्ट्स रिकॉर्ड करता है, वो पूरा नहीं रिकॉर्ड करता. हो सकता है पूरा ना रिकॉर्ड करे, इट इज़ पॉसिबल. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कैन वी कंसिडर सेक्शन 200 स्टेटमेंट्स एज सब्सटैंशियल एविडेंस? ऑब्वियसली नॉट. ये जो रीजनिंग मैंने अभी आपको दी है, बॉम्बे हाई कोर्ट की रीजनिंग थी. इट केम अपॉन दिस रीजनिंग ऑन द सेम फैक्ट्स. तो एक चीज़ जो बहुत सेफली कही जा सकती है, if we keep in mind the various judgments of the High Court and the Supreme Court, कि जो 200 के statements हैं वो substantial evidence नहीं होते हैं. और इस पे elaboration substantial evidence के nature पे, contradictory और corroborative evidence के nature पे, वो आपका होगा Evidence Act पे. All right, अभी के लिए हमारा concern है CRPC. नेक्स्ट वी कम अंडर 201. देखिए, ये हैं तो कहने को 3 सेक्शन, 200 से 203 तक, लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट्स बहुत भरे पड़े हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स इन हियर, सो दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम. इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बेल में कंसेप्ट हैं, 195 to 197 और कॉग्निजेंस में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, कंप्लेंट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आपके क्या कहते हैं कुछ और प्रोविजंस हैं छोटे छोटे, जैसे कंपाउंडिंग और 482 और इरेगुलरिटीज़ ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ये कंसेप्चुअल हैं, इनमें टाइम लगता है. बाकी सब उतने कंसेप्चुअल हैं नहीं जिसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो. ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है, तभी इन पे वी हैव टू स्टॉप फॉर अ वाइल. तो वी कम टू सेक्शन 200 वेयर द
प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। अगर मान लीजिए आप सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, वो नहीं संज्ञान ले सकता है इस पर, बिकॉज इट इज नॉट एम्पावर्ड बाय द CJM एट दैट टाइम। तो आप क्या करेंगे, तो अगर आपने मान लीजिए कंप्लेंट इन राइटिंग में दे दी ऐसे मैजिस्ट्रेट को, तो वो यही कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को। और अगर आप ओरली उसके पास चले गए तो वो आपको बता देगा कि देखिए मेरा कोड प्रॉपर नहीं है, आप इस कोर्ट में जाइए, ये कोड प्रॉपर होगा इसके लिए। ऑलराइट, सो नथिंग मच हियर। अब आता है अगला जो बड़ा सेक्शन है, वो है ये सेक्शन 200, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। Any magistrate on receipt of a complaint of an offence which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under 192, कि मान लीजिए किसी और मैजिस्ट्रेट ने एग्जामिन किया, फिर केस फॉरवर्ड कर दिया दूसरे मैजिस्ट्रेट को, may if he thinks fit। अब देखिए यहाँ पे पहला क्लॉज कहता है may if he thinks fit, अगर उसे सही लगे, पर दूसरा क्लॉज क्या कहता है, शैल इन अ केस वेयर अक्यूज्ड रिजाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द एरिया वेयर ही एक्सरसाइजेस हिज जुरिसडिक्शन पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस। तो पहले केस में क्या है, अब इसको डिसजंक्ट करिए, इफ यू थिंक्स फिट के बाद जो कॉमा है ना, इसको डिसजंक्ट करिए, ये डिसजंक्शन है यहाँ पे। ये पहले प्रोविजन में तो में, अगर मान लीजिए उसके लोकल एरिया की बात है, उसके लोकल एरिया से रिलेटेड किसी मैटर पे आपने कंप्लेन की है, तो दैट इज़ फाइन, ही मे कंडक्ट, उसके पास ऑप्शन है चाहे वो करे या ना करे। लेकिन जब अक्यूज्ड उसके एरिया के बाहर रहता है, इफ ही रिसाइड्स बियॉन्ड द एरिया वेयर ही एक्सरसाइजेस जुरिसडिक्शन, यहाँ पे लेजिस्लेचर ने मैंडेट किया है कि आप इशू को पोस्टपोन करेंगे जो आप अक्यूज के खिलाफ करने वाले थे, और पहले आप इंक्वायरी करेंगे चाहे खुद से या एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेंगे टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर और सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो अगर उसके एरिया में का मैटर है तो और वो ऑथराइज है कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो अपने दिमाग से हेजिटेशन हटाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो या तो खुद इंक्वायर करेगा या एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर से या किसी और पर्सन से जिससे भी वो चाहे, फॉर द पर्पस फॉर डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ये सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग क्या है, आई हैव टोल्ड यू ऑन द इन्वेस्टिगेशन स्टेज इटसेल्फ की जो इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर 12 में और जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ होती है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। सो रिमेंबर दैट केस लॉ, और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 202 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के दिमाग से हेजिटेशन हटाने के लिए, कि मान लीजिए जो कंप्लेंट का एग्जामिनेशन आपने किया है और विटनेसेस का एग्जामिनेशन आपने किया है, तो उसके बाद भी मैजिस्ट्रेट को कुछ डाउट्स हैं और वो डाउट्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे ना आपके विटनेसेस क्लियर कर पा रहे, तो ऐसे केस में क्या करता है मैजिस्ट्रेट, या तो खुद इंक्वायर करेगा या वो पुलिस को बोलेगा कि आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो इस केस में, या वो किसी थर्ड पर्सन को भी इम्पावर कर सकता है ऐसी स्टेज में। इन दिस सिचुएशन वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी इम्पावर कर सकता है कि गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट, ठीक है, एंड ही कैन गिव हिम ऑल द पावर्स ऑफ SHO फॉर दैट पर्पस एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो ऐसे केस में व्हाट विल ही डू, he will do either of the only two things, either inquiry himself or direct an investigation। ये सिर्फ प्राइमा फेसाई केस के satisfaction के लिए होता है। Always remember, the satisfaction here is for the purpose of removing the hesitation in his mind and to see if a prima facie case on complaint is established। Alright, सिर्फ इसी के लिए है। फिर आगे एक प्रोवाइजो आता है, ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है, इसको भी मार्क कर लीजिए।
provided no direction for investigation shall be made where it appears to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Sessions, or where the complaint has not been made by the court unless the complainant and the witnesses present have been examined on oath under section 200. मतलब ये कह रहा है कि आप डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकते अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जैसे मर्डर केस, इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर प्राइवेट पर्सन ने कंप्लेंट की है और वो कोर्ट नहीं है, कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं की है, तो ऐसे केस में 200 का प्रोसीजर जब तक पूरा ना हो, मतलब आपने कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन ना कर लिया हो और उनका सब्सटेंस रिड्यूस करके सिग्नेचर्स ना एक्वायर कर लिए हों, तब तक यू कैन नॉट इशू एन डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं सबसेक्शन 2 पे ऑफ 202। इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। तो प्री एविडेंस विटनेस वो चाहे तो जो इंक्वायरी करे, प्री समनिंग एविडेंस वो चाहे जब इंक्वायरी करे तो ओथ पे ले सकता है चाहे तो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट प्रोवाइजो हमने पढ़ा 202 का, ये बार इन्वेस्टिगेशन पे ही है, उसको ऑटोमेटिकली इंक्वायरी पे मत एक्सटेंड कर लीजिएगा। ऐसे केस में वो इंक्वायर कर सकता है पर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दे सकता है। ऑलराइट, तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इंक्वायरी जब वो कंडक्ट करेगा, मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ, अगर वो चाहे तो। और दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट that the offence complained of is triable exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath। अगर उसने देखा कि यार ये मर्डर केस है या कोई भी ऐसा केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है, तो विटनेसेस को कहेगा, ये मैंडेट है कि आप अपने सारे विटनेसेस लाओ और मैं उनको ओथ पे एग्जामिन करूंगा। He shall examine them on oath. He shall call upon the complainant to produce all his witnesses. His शब्द पे फोकस करिएगा। अगर यहाँ पे कंप्लेनेंट के ऊपर ये बर्डन नहीं है कि उसे ऑल पॉसिबल विटनेसेस प्रोड्यूस करने हैं जो भी उस केस के हो सकते हैं, नहीं, उसके ऊपर बस इतना क्या कहते हैं, इतना बर्डन है कि जो भी विटनेसेस उसके केस को सपोर्ट कर रहे हैं, दोज विटनेसेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो भी आई विटनेसेस है, मान लीजिए किसी ने मर्डर देखा, आप कंप्लेनेंट हो, आप जानते हैं आपके अलावा ABCD ने भी देखा, ठीक है, पर ED क्या कहते हैं, ABCD ने आपका वो देखा, क्या कहते हैं, मर्डर आपने भी देखा और ABCD ने भी देखा एक मर्डर होते हुए, तो यू ऑल आर आई विटनेसेस। अब इसमें जब कंप्लेंट लॉन्च होगी, क्योंकि ये सेशंस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में जब इंक्वायरी होगी तो मैजिस्ट्रेट शैल टेल यू व्हेन यू गो टू द मैजिस्ट्रेट कि प्रोड्यूस ABCD, उन सबको लाओ, जितने भी तुम्हारे विटनेसेस हैं उन सबको लाओ जो तुम्हारा केस सपोर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए जिसके खिलाफ आप क्राइम अक्यूज कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट पर्सन जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है, दैट पर्सन इज मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को वाई और जी ने भी क्या कहते हैं अपने साथ देखा था एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। वो उस स्पॉट पे नहीं था, मान लीजिए वो उस स्पॉट से 500 किलोमीटर दूर था, फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं एक अजम्पशन के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए। वाई और जी का ये मानना है कि जो एक्स है एट द टाइम जब आप ऑफेंस एलेज कर रहे हैं उस स्पॉट से 500 किलोमीटर दूर था, तो मर्डर कैसे कर सकता है?
तो आपको पता है कि वाई और जी भी इस केस से रिलेटेड है और वो विटनेस हैं और वो डिफेंस में आएंगे, पर आपको उनको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू प्रोड्यूस देम. आपको वही विटनेस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है who are supporting your case. That is why the legislature has used his witnesses, जो आपके विटनेस हैं, तभी his word का प्रोड्यूस किया है, not all witnesses. अगर देखिए प्रोड्यूस all के बाद his हटा दे, अगर आप all के बाद his हटा दें तो क्या बन जाएगा सेक्शन? He shall call upon the complainant to produce all witnesses and examine them on oath. तो ऐसे में तो भाई कंप्लेंट का प्रोसीजर इतना टफ बन जाएगा कि आप कहाँ ढूंढोगे विटनेसेस कौन कौन है. आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उनको भी ले आओ. वाई हमारे केस में जो डिफेंस के विटनेस बनेंगे आगे चल के, वो कहेंगे कि नहीं एक्स उस स्पॉट पे नहीं था, तो आपको वाई को लाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है. आपको उन्हीं लोग को लाने की जिम्मेदारी है who are your witnesses. Alright, that is why the legislature has used the word his witnesses and examine them on oath. अब सबसेक्शन 3 एक छोटी सी बात कहता है कि if any investigation under subsection 1 is made by the person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this code on an officer in charge of a police station except the power to arrest without warrant. So I have just told you before कि अगर प्राइवेट पर्सन को मैजिस्ट्रेट एम्पावर करता है, सारी एसएचओ की पावर्स देता है, तो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट जो सेक्शन 41 में है वो नहीं देगा. वो चाहे तो किसी पर्सन को स्पेसिफिक अरेस्ट करने के लिए वारंट जरूर दे दे, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरली बिकॉज ही इज गिवन द पावर्स ऑफ एन एसएचओ डजंट मीन दैट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज ऑल्सो देयर. क्या कहते हैं उस ऐसे प्राइवेट पर्सन के पास to whom such magistrate has empowered. ठीक है. Now I'll deal with the scope of inquiry under 202. मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, but I'll tell you again कि the scope of inquiry under section 202 of the CRPC is extremely limited. It's only to ascertain the truth or falsehood of the allegations made in the complaint. किन grounds पे? A, on the materials placed before the complainant before the court. On the materials placed by the complainant before court, ये तो first है. दूसरा, for the limited purpose of finding out whether a prima facie case for the issue of process is made out. Prima facie case आप जानते हैं, it is not a case proven to a hilt. It only means that the evidence and materials that you have placed before the magistrate, if he believes you, can a process be issued. ये नहीं कि only यही conclusion बने कि वो convict होगा या नहीं. Sufficiency of conviction नहीं देखनी है, sufficiency of a prima facie case देखना है. ठीक है. For deciding the question purely from the point of view of the complainant without at all adverting to any defense that the accused may have. इसको डिसाइड करने के लिए आपको सिर्फ कंप्लेनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, अक्यूज्ड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है. वो तो इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद आएगा, द टाइम ऑफ ट्रायल वो अपना एविडेंस देगा, फिर पता चलेगा आपका एविडेंस कितना प्रोबेटिव वैल्यू आपकी एविडेंस की क्या थी, ट्रुथ था, फॉल्स था, क्या था. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरुआत में ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ एन एलिगेशन की बात की ना, वो बस उसने इस बात की बात की कि जब इनहेरेंट फ्रेलिटी है आपके केस में, आपका कंप्लेंट ही क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है या केस नहीं मेड आउट कर रहा है, उसकी बात की. लेकिन अगर आपके वर्जन को सुन के और आपने जो मटेरियल प्लेस किया है उस पर अगर हम यकीन कर लें, अगर मैजिस्ट्रेट यकीन कर ले, तो ऐसे केस में प्राइमा फेसाई केस अगर मेड आउट होता है देन दैट इज सफिशिएंट एंड आई कैन इशू द प्रोसेस. और तब अक्यूज्ड फिर जब ट्रायल पे आएगा चार्ज फ्रेमिंग के बाद, जब चार्ज फ्रेम होगा तब अपना एविडेंस एड्यूस करेगा कि क्या प्रोबेटिव वैल्यू है आपके एविडेंस की. वहाँ पे प्री समनिंग एविडेंस पे आप मिनी ट्रायल नहीं हेल्ड करते, ऑलवेज रिमेंबर दैट. Where the allegations made in the complaint or statement of the witnesses recorded in the support of the same are taken at the face value, make out absolutely no case against the accused or complainant.
the complainant does not disclose the essential ingredients of an offence which is alleged against the accused, in that case the magistrate is empowered to dismiss the complaint. अगर आपके एलिगेशंस हम मान भी लें और उसके बाद भी कोई ऑफेंस नहीं मेड आउट हो रहा, ऑलराइट, आफ्टर इवन बिलीविंग योर केस नो ऑफेंस इज बीइंग मेड आउट, कोई ऑफेंस नहीं मेड आउट हो रहा, या आपका मटेरियल इतना इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आई कैन नॉट इवन कम टू अ कंक्लूजन ऑफ अ प्राइमा फेसाई केस, ऐसे केस में भी आई कैन डिसमिस द कंप्लेंट. जो कंप्लेंट का डिसमिसल है ना, ध्यान रखिएगा, ये कॉग्निजेंस के बाद होता है कंप्लेंट का. अंडर सेक्शन 203 आता है आपका डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, उसको याद रखिए. विल डील विद दैट राइट नाउ, पर अभी थोड़ा 202 पे थोड़ा एलैबोरेट करना है आपको. A magistrate taking recourse to an inquiry under the proviso to section 202 subsection 2 in a case tribal exclusively by the court of session is bound to call upon the complainant to produce all his witnesses. ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये mandatory provision है. It is a mandatory provision. Its rigor cannot be relaxed by the magistrate. ठीक है, हाँ, ये उस केस में नहीं अप्लाई करेगा जब वहाँ पे कोर्ट ने कंप्लेंट की है, ऑलराइट, या पब्लिक सर्वेंट हैज मेड अ कंप्लेंट, वहाँ पे उतना ये रिगरस नहीं होता. इन दैट सिचुएशन इट विल बी नॉट दैट रिगरस. द कंप्लेनेंट जनरली शुड बी गिवन एन opportunity to prove the truth of his complaint, but accused cannot be allowed to participate in this proceedings or cross-examine the witnesses at this stage और इवन अड्यूस एविडेंस एट द डिफेंस. इस स्टेज पे आप कंप्लेनेंट को तो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, सच बोल कि मतलब कि आप मटेरियल प्लेस करो, एक्स्ट्रा मटेरियल लाओ, या आप उसे एग्जामिन करो, ये सब कर सकते हैं, पर आप अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए. ध्यान रखिएगा, नाइदर कैन यू अलाउ अक्यूज्ड टू प्रेजेंट हिज एविडेंस एट दैट स्टेज. कंप्लेंट की स्टेज पे आप ये सारी चीज़ें नहीं अलाउ कर सकते. कंप्लेंट की स्टेज पे यू हैव टू ओनली कंसिडर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द विटनेस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड गो अकॉर्डिंग टू हिज वर्जन एंड देन डिटरमाइन द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ हिज मटेरियल. मतलब उसकी आप देखिए प्राइमा फेसाई केस उस पर बन रहा है या नहीं, दैट्स ऑल यू हैव टू सी. यू डोंट हैव टू होल्ड अ मिनी ट्रायल देयर. CRPC does not envisage the participation of the accused at the inquiry stage. Always remember that. Generally, CRPC does not envisage the participation of accused at the inquiry stage. वो जब process issue हो जाता है, वो it's only after that, it's only after the issue of process that the accused will now get a right to participate in the proceeding, not before that. ठीक है, हो सकता है मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट डिसमिस कर दे, आज ज़बरदस्ती आ रहे, तो जब तक आपको प्रोसेस ना इशू कर दिया जाए तब तक यू डोंट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दोज प्रोसीडिंग्स. ठीक है, राइट नहीं होता. अब रोजी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का बहुत लीडिंग जजमेंट है इस पॉइंट पे. ठीक है, इसमें जस्टिस MB शाह और जस्टिस KT थॉमस का अप्रोच थोड़ा अलग है कि क्या ये प्रोविज़न मैंडेटरी है, अगर है तो कितना मैंडेटरी है. तो इसमें दोनों ने जजमेंट तो कंकर किया है पर रीजनिंग अलग अलग दी है. तो सिंस इट्स द मोस्ट लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट, तो ये ज़रूरी होगा कि हम दोनों के जजमेंट से डील करें, जस्टिस MB शाह के भी और जस्टिस KT थॉमस के भी, क्योंकि दोनों के सेपरेट जजमेंट्स हैं. तो जस्टिस MB शाह के पहले जजमेंट से डील करते हैं. He says that the section 202 is only an enabling provision and it is a direction to the magistrate depending upon the facts of each case whether to issue process straight away or to hold an inquiry. तो 202 का जो प्रोसीजर है वो इनेबलिंग है, मैंडेट नहीं करता हर केस में कि वो इंक्वायरी हेल्ड करे.
वो हो सकता है सीधे प्रोसेस इशू कर दे कंप्लेंट पे अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर कंप्लेंट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है इंक्वायरी करे, है ना। पर ध्यान रखिएगा 2005 अमेंडमेंट जो है इसका, दैट इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे पर्सन इज रिसाइडिंग आउटसाइड द एरिया। ये जजमेंट 2000 का है, तो ऑलवेज रीड विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट। हाउएवर इन केस वेयर इंक्वायरीज इज हेल्ड, failure to comply with the statutory direction to examine all the witnesses would not vitiate the further proceeding in all cases। हर केस में, हालांकि ये प्रोविजन मैंडेटरी है, लेकिन हर केस में फर्दर प्रोसीडिंग इसकी विशिएट नहीं हो जाएगी, फॉर द रीजंस दैट ए, पहला रीजन क्या है, in a complaint filed by a public servant acting or purporting to act in discharge of his official duties, the question of holding an inquiry arise नहीं होता, हो सकता है ना arise हो, ठीक है, may not arise at all। B, whether to hold inquiry or not is a discretionary jurisdiction of the magistrate। और C, even if he decides to hold inquiry, it is his further discretion to examine the witness on oath। वैसे आपने सबसेक्शन 2 का देखा होगा, प्रोवाइजर की बात नहीं कर रहा, 202 के सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, he may if he thinks fit take evidence on oath। तो यही जस्टिस एमबी शाह ने रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यही बोला कि ये तो डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन उसका दिखाता है, और डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन को 202 में उतना मैंडेट नहीं मान सकते कि हर केस में ट्रायल ही विशिएट हो जाएगा या फर्दर प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी अगर आपने ढंग से इससे कंप्लायंस नहीं किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी मूव ऑन फर्दर इन द जजमेंट। इफ ही डिसाइड्स टू एग्जामिन द विटनेसेस ऑन ओथ इन अ केस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath। D क्या बोला है, D रीजनिंग इनका क्या है, it would depend on the fact and circumstances of each case, depending upon the prejudice to the accused and the miscarriage of justice, reading this provision with 465 of the CRPC। ये हर केस टू केस देखा जाएगा कि क्या नॉन कंप्लायंस इससे इतना ग्रेव था कि अक्यूज प्रेजुडिस हो गया विच रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ये देखा जाएगा, ठीक है। इट विल, और सारी इरेगुलरिटीज ऑफ प्रोसीडिंग किसके साथ रीड की जाती हैं, इन दिस केस 465 के साथ रीड की जाएंगी, ठीक है। ई आता है, ई में क्या उन्होंने रीजनिंग दी, the objection with regard to the non-compliance of the proviso should be taken at the earlier stage when the charge is being framed by the court of session। तो ये जो mandatory examination on oath है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर मान लीजिए सबको नहीं एग्जामिन किया है, विटनेस या कंप्लेनेंट ने अपने सारे विटनेस नहीं प्रोड्यूस किए या ढंग से कंप्लायंस नहीं हुआ है इसका प्रोवाइजो का, सेक्शन 202 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो का, तो इन दैट सिचुएशन आपकी ड्यूटी क्या बनती है एज एन, अगर कोई अक्यूज्ड है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द अक्यूज्ड, टू टेक द ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू नॉन कंप्लायंस एट द अर्लियर स्टेज when the charge is framed by the court of session, ठीक है। फिर we proceed further। At initial stage, if the objection is raised and it is found by the court of session that by non-holding of an inquiry prejudice is caused to the accused, अगर court of session को लगता है ऐसे ऑब्जेक्शन पे रेज होने पे कि नॉन होल्डिंग ऑफ एन इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर 202 ऑफ द सीआरपीसी अक्यूज्ड प्रेजुडिस हो गया है एंड दैट हैज कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ जस्टिस, ही मे डायरेक्ट द मैजिस्ट्रेट टू फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन। वो कहेगा मैजिस्ट्रेट साहब फिर से आप क्या कहते हैं इस स्टेज को हेल्ड करिए, कंप्लेनेंट को बुलाइए, सारे विटनेसेस आप ढंग से एग्जामिन करिए, ये डायरेक्शन मिल सकता है आपको सेशन जज से। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट सेज
स्पीकिंग थ्रू जस्टिस के.टी. शाह, एम.बी. शाह, कि it is no doubt true that the use of word shall, it appears that the language of the proviso is mandatory. At the same time ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि CRPC एक procedural law है and it is to be read in context of section 200 which enables the magistrate to issue process without holding any inquiry, and that inquiry under 202 is itself a discretionary exercise giving option to examine or not to examine the witnesses. तो ये के.टी. शाह का एम.बी. शाह का जजमेंट था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने इसको कंकर किया है, लेकिन अब मैंडेटरी की बात को लेके कि जो 202 का सेक्शन 202 सब सेक्शन 2 प्रोवाइजो मैंडेटरी है या नहीं, इसको लेके रीजनिंग को लेके थोड़ा डिफ़र करते हैं जस्टिस के.टी. थॉमस जस्टिस एम.बी. शाह से. ठीक है, मैं अभी जस्टिस एम.बी. शाह का ही का एक्सेप्ट कंप्लीट करता हूँ जो रेलेवेंट होगा. Hence the proviso to subsection is required to be read accordingly, though couched in mandatory terms by using word shall. तो जस्टिस एम.बी. शाह कहते हैं कि प्रोवाइजो हालांकि शैल लिखा है, लेकिन आपको पूरे प्रोसीजरल कंटेक्स्ट में उसको देखना है. देखिए CRPC मैंडेटरी लॉ है, सॉरी प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ का पर्पस क्या होता है? टू एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ जस्टिस. फिर साथ में ये भी देखना चाहिए कि 200 में अगर एग्जामिनेशन होता तो 200 में एग्जामिनेशन होता तो वो डायरेक्टली भी कर सकता था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा. तो और बाकी जो डिस्क्रिशन जो 202 भी कितना देता है मैजिस्ट्रेट को, बाय द यूसेज ऑफ द वर्ड ही मे इफ ही थिंक्स फिट, ये सारा जो 202 में इनकॉर्पोरेटेड है. तो ऐसी सिचुएशन को देख के जस्टिस एम.बी. शाह इस कंक्लूजन पे आते हैं कि दिस प्रोविजन हालांकि मैंडेटरी टर्म्स में लिखा हुआ है, शैल में लिखा हुआ है, पर नॉर्मली non-observance of the said procedure may not vitiate further proceedings in all case. तो एम.बी. शाह क्या कहते हैं? नॉर्मली non following of such procedure, non-observance of such procedure may not vitiate the further proceedings in all case. कि मान लीजिए उसने सारे विटनेसेस को नहीं एग्जामिन किया, कुछ ही विटनेस को एग्जामिन कर पाया, जबकि लेजिस्लेचर कहता है शैल एग्जामिन ऑल हिज विटनेसेस. ठीक है, एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ. हाँ, थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी हो गई तो हर केस में नहीं देखा जाए, हर केस में ऑटोमेटिकली वो विशिएट नहीं हो जाएंगी फर्दर प्रोसीडिंग्स, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब आगे आते हैं. इन अ केस वेयर कंप्लेंट इज फाइल्ड नॉट बाय अ पब्लिक सर्वेंट and where the offence is exclusively trialed by the court of session, the magistrate should follow the proviso to subsection 2 of 202 and call upon the complainant to produce all his witness and examine them on oath. This would be in consonance with the provision of section 208 which inter alia provides that the copy of statements and documents to the accused. वो प्रोवाइड करता है सेक्शन 208 कि जब भी इस एग्जामिनेशन से जो भी इस डॉक्यूमेंट की जो कॉपीज और एक्सेप्ट्स और मटेरियल है वो अक्यूज्ड को भी मिलेगा 208 में. दिस वुड ऑल्सो फैसिलिटेट सेशंस कोर्ट इन फ्रेमिंग द चार्ज और डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड. तो ये जब प्रोसीजर से जब आप अप्लाई करते हैं तो फैसिलिटेशन काफ़ी हो जाता है उसका सेशन जज के सामने कि वो चार्ज से कंप्लाई डिस्चार्ज कर दे या वो चार्ज फ्रेम करके ट्रायल हेल्ड करे. तो ये सारे उसके प्रोविजंस के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल. तो आगे चार्ज फ्रेमिंग आने ही वाला है, तो ये कंप्लेंट के बाद हम लोग अरेस्ट लेंगे, अरेस्ट के बाद हम लोग क्या कहते हैं मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स लेंगे, और उसके बाद हम लोग चार्ज और ट्रायल पे आ जाएंगे. ठीक है, फिर अब हम आते हैं जस्टिस के.टी. थॉमस के व्यू पे. अब मेरा पर्सनल मानना है, पर्सनल मेरा व्यू क्या है कि जस्टिस के.टी. थॉमस का व्यू इज बिट बेटर देन दैट ऑफ जस्टिस एम.बी. शाह. हालांकि दोनों ने कंकर किया है, लेकिन जस्टिस के.टी. थॉमस की रीजनिंग ज़्यादा अच्छी है.
कि इन्होंने भी यही कहा है, जस्टिस केटी थॉमस ने, कि द इर्रेगुलरिटी और नॉन कंप्लायंस देयर ऑफ वुड नॉट विशिएट फर्दर प्रोसीडिंग इन ऑल केसेस। हर केस में तो नहीं करेगी। अगर मान लीजिए आपने 202 से नॉन कंप्लायंस किया, आपको करना था मैंडेटरीली, आपने नहीं कर पाया, तो हर केस में वो क्या कहते हैं फर्दर प्रोसीडिंग, जैसे मान लीजिए ट्रायल हो गया तो विशिएट नहीं कर होगा, वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे देखा जाएगा कि वेदर द अक्यूज वाज प्रेजुडिस और वेदर द फेलियर ऑफ जस्टिस हैज हैपेंड। ये 2 क्राइटेरिया होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अ पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ सच इरेगुलरिटी शुड रेज द ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट स्टेज। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आप ऑब्जेक्शन लेंगे अर्लीस्ट स्टेज पे ही आपको रेज करना चाहिए। एंड ही शुड पॉइंट आउट हाउ द प्रेजुडिस इज कॉज्ड और इज इट लाइकली टू बी कॉज्ड बाय नॉट फॉलोइंग द प्रोवाइजो। कि मतलब जब आप 202 के सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो की बात कर रहे हैं कि सेशन जज की कोर्ट ऑफ सेशन से जब एक्सक्लूसिवली ट्रायल है तो सारे और विटनेसेस को ओथ पे एग्जामिन करना था, सारे विटनेसेस को ऑफ द कंप्लेनेंट, और वो नहीं किया तो एक्यूज को ये भी दिखाना होगा कि आप प्रेजुडिस कैसे हुए, ये भी दिखाना होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ, तो इवन दो सम वर्ड्स आर काउच्ड इन मैंडेटरी टर्म्स, शैल है, लेकिन तब भी ये भी देखा जाएगा कि क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है उसकी वजह से, क्या अक्यूज प्रेजुडिस हुआ है, और अगर आंसर है इसका नहीं तो ऑटोमेटिकली ये नहीं प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हेंस नाउ द अक्यूज्ड इज प्रेजुडिस्ड और अब ट्रायल विशिएट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये नहीं होता, ये दिखाना पड़ता है। तो यही जस्टिस केटी थॉमस ने कहा। और अगर वो अर्लीस्ट स्टेज पे नहीं रेस करता है ऑब्जेक्शन तो वो लेटर स्टेज पे नहीं रेस कर पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 197 में सैंक्शन में ऐसा नहीं है, पर इस केस में ऐसा है। तभी मैंने आपको 465 का प्रोसीजर 2 पार्ट में डिवाइड करवाया था। नाउ while dealing with the section 465 of the code, in the judgment of Kalpanath Rai versus State, Supreme Court said कि section 465 of the code पहली बात blank check नहीं है, it's not a carte blanche for tendering all trials vitiated on the ground of irregularity of sanction if objection thereto was raised at the first instance itself। ये ब्लैंक चेक नहीं होता है कि आपने क्या कहते हैं सीधे आप आए और सबको आपने वॉइड करवा दिया क्योंकि प्रोसीजरल रूल से कंप्लायंस नहीं हुआ था। ये सिर्फ इतना कहता है कि जो कंसिडरेशन कोर्ट पे वे करेंगे वो ये करेंगे कि क्या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, क्या अक्यूज्ड इसकी वजह से नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर की वजह से प्रेजुडिस हुआ है या नहीं, और क्या वो ऐसा ऑब्जेक्शन अर्लियर स्टेज पे ले सकता था, और क्या उसी इर्रेगुलरिटी की वजह से क्या वो प्रेजुडिस हो गया या नहीं। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली कंसिडरेशन जो कंसिडर किया जाएगा। जस्टिस केटी थॉमस ने अपने जजमेंट में इस जजमेंट को भी रेफर किया, 1997 में रिपोर्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट केसेस में। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली इरेगुलरिटीज ट्रायल को वॉइड नहीं कर देती हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। देयर आर ऑलवेज सब्सटैंशियल रीजंस जिनके बेसिस पे ट्रायल या फर्दर प्रोसीडिंग्स विशिएट होंगे। जस्टिस केटी थॉमस ने इसके लिए 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन को भी रेफर किया। अब इन्होंने जस्टिस एम.बी. शाह से डिफर कहाँ पे किया वो मैं बताता हूँ। जस्टिस एम.बी. शाह ने बहुत एक्सप्रेस शब्दों में मैंडेटरी नहीं बोला उसको, प्रोसीजर को, सेक्शन 202 के प्रोवाइजो को। उन्होंने बेसिकली बोला कि पूरे कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये फॉलो होना चाहिए पर ये उतना मैंडेटरी है नहीं, मतलब मोटा मोटा यही निकलता है उनके जजमेंट से। पर जस्टिस केटी थॉमस ने क्या बोला, जस्टिस केटी थॉमस ने बोला कि हमें लेजिस्लेचर के वर्ड्स को इफेक्ट देना है, तो अगर लेजिस्लेचर ने शैल वर्ड का यूज़ किया है तो आई बिलीव दैट दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी और मैजिस्ट्रेट को ये फॉलो करना ही चाहिए। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कंकर किया जस्टिस एम.बी. शाह से कि अगर आपने
नॉन कंप्लायंस किया उससे, इरेगुलरिटी हो गई, तो ऑटोमेटिकली ट्रायल इनिशिएट हो जाएगा या फर्दर प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्शन फर्स्ट इंस्टेंस में ले लिया, आपने दिखा दिया कि मैं प्रेजुडिस हूँ, तो सेशन जज रिमांड कह देगा कि ये प्रोसीडिंग सर्टिसाइड करो, मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ इनका ऑर्डर, उनसे कहूँगा कि फिर से आप कंप्लाई करें सेक्शन 202 का इन लेटर एंड स्पिरिट, ये कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए अक्यूज ने बहुत देर लगा दी, ट्रायल के एंड तक वेट किया उसने, इन दैट सिचुएशन ये विशिएट नहीं करेगा, उसको दिखाना होगा कि हाउ ही इज प्रेजुडिस एंड हाउ द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हैज हैपेंड एंड ही हैज टू टेक दिस इशू एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन अर्लियर स्टेज पे नहीं लिया गया रिगार्डिंग सच ओमिशन, देन इससे ये भी कंक्लूजन भी तो निकल सकता है, देन हाउ फार सच ओमिशन हैज लेड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस व्हेन द ऑब्जेक्शन इज टेकन एट द लेटर स्टेज। कि अगर मान लीजिए अक्यूज्ड को इतना ही ये बड़ा ग्राउंड था जिसने उसको प्रेजुडिस किया, तो उसने पहले क्यों नहीं उठाया, उसने इतनी देर क्यों लगाई? उसकी इतना वेट करने से ही दिख रहा है कि वो प्रेजुडिस नहीं हुआ था, वो तो बस अब वो तरीके ढूंढ रहा है जिससे वो स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ लॉ से बच जाए। ये भी एक व्यू बन सकता है। अ डिसीजन ऑन बिलेटेड ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन इन माइंड by bearing the principles adumbrated under section 465 of the CRPC. तो principles क्या है 465 के? Whether the accused is prejudiced or the miscarriage of justice has happened. जब हम लोग irregularities पे आएंगे तो डिटेल में डील करेंगे, पर 2 लाइन में यही मेन टेस्ट हैं। ठीक है, these are the main tests that has to be dealt with. तो जजमेंट तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, but now we have to deal with the issue of the dismissal of complainant. ये सारे मेन मोटे मोटे इश्यूज थे जो एग्ज़ाम के लिए आते हैं आपके CRPC में 202 में। तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट पे आते हैं 203 में। If after considering the statements on oath if any, ठीक है, of the complainant and witnesses and the result of inquiry or investigation if any under section 202, the magistrate is of the opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint. अगर 200 के एग्जामिनेशन के बाद, उसके मटेरियल कंसिडर करने के बाद, या 202 की एग्जामिनेशन के बाद, इंक्वायरी के बाद या इन्वेस्टिगेशन के बाद मैजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसाई केस ही नहीं मिल रहा, ऐसे केस में वो डिसमिस कर सकता है। एक चीज़ लिख लीजिए 203 के बगल में ही कि इट हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन 398 ऑफ द CRPC। ठीक है, 398 ऑफ द CRPC रिवीजन की पावर देता है और वो कहता है, बताता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। सेक्शन 398 ऑफ द CRPC says that, उसका प्रोवाइजो देखिएगा 398 का, कि नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, नहीं प्रोवाइजो मत देखिए, यू लुक एट द मेन सेक्शन, ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द सेशन जज मे डायरेक्ट द CJM बाय हिमसेल्फ or by the magistrate subordinate to him to make, and the CJM may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry into or any complaint which has been dismissed under 203. तो रिवीजन के पर्पस के लिए ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है 398 कि इसमें इंक्वायरी हो सकती है आइदर ऑन सुमोटो बाय द रिविजनल कोर्ट्स या ऑन द एप्लीकेशन, कि जो कंप्लेंट डिसमिस की गई है उस पे एक इंक्वायरी हेल्ड हो कि किस ग्राउंड्स पे डिसमिस की मैजिस्ट्रेट ने, और सबसेक्शन 4 of 204 और इनटू द ग्राउंड्स ऑफ केस अ पर्सन अगेंस्ट whom an offence has been is discharged, provided that no court shall make any proviso पे अब आते हैं, now the proviso is relevant, provided that no court shall make any direction under this section
for inquiry into the case of any person who has been discharged unless the person has had an opportunity of showing cause why such direction should not be made. Alright, तो रिविजन पे तो हम लोग बाद में डिटेल पे आएंगे, लेकिन यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रीड section 203 of the CRPC, and for that purpose subsection 204 subsection 4 of the CRPC and discharge provisions that are present in the CRPC with section 398, and 398 shall be read with section 397 and 401 of the CRPC. तो ये सब बेयर एक्ट में ना लिखते चलिएगा, जिससे आगे आपको जब भी आप 203 पढ़ें तो 398 ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाए, 401 ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाए और 397 ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाए. ऑलराइट, इसी पर्पस के लिए मैंने आपको 398 बताया, और कोई रीज़न नहीं था. ये बस आपके रिविजनल और आपके अवेयरनेस पर्पस के लिए था. तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इस पे आता हूँ मैं. पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट ने प्राइमा फेसी ऑफेंस ही नहीं बनाया, इट डिस्क्लोजेज नो ऑफेंस, इस पे क्या कहते हैं डिसमिस हो सकता है. दूसरा ग्राउंड रीज़न क्या हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट ने आपको और कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन किया और पाया कि द केस इज इनहेरेंटली वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड अगेन ड्यू टू दिस रीजन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन नो केस इज बीइंग मेड आउट, तो इस बात पे भी डिसमिस कर सकता है. तीसरा रीज़न, जब 202 में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है तो उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि नहीं, ये तो जो आपके दिमाग में हेजिटेशन है वो सही है, ये केस फ्रिवलेस है एंड नथिंग इज़ बीइंग मेड आउट, प्राइमा फेसी केस मेड आउट ही नहीं हो रहा है, इनकी कंप्लेंट से भी नहीं हो रहा है, ना इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से हो रहा है. तो इन दैट सिचुएशन अगेन व्हाट विल हैपन, ही इज एम्पावर्ड टू डिसमिस अंडर 203 ऑफ द CRPC. एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप डिसमिसल की बात करते हैं तो डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट को आप अक्विटल से मत बांध लीजिएगा. अक्विटल हमेशा ट्रायल पे होता है. ये जो वर्ड्स है ना, अक्विटल, डिस्चार्ज, डिसमिसल, ये सेम सिनोनिमस नहीं है, अलग अलग हैं. अक्विटल ट्रायल पे होता है, डिस्चार्ज आपका क्या कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज से पहले होता है पर इशू प्रोसेस के बाद हो सकता है. डिसमिसल ऑफ द केस में उसको पता चलता है मैजिस्ट्रेट को कि कोई केस नहीं बन रहा, तो अक्यूज तो सीन ही में नहीं आया है. ऑलराइट, सो ऑलवेज कीप इन माइंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द कोर्ट. ऑलराइट, तो इस पे सबसे लीडिंग जजमेंट हुआ करता था 1962 का डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट पे कि प्रमाथनाथ तालुकदार वर्सेस सरोज रंजन सरकार. ये AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 876 पे रिपोर्ट हुआ था और ये जस्टिस हिदायतुल्ला ने जजमेंट रिकॉर्ड किया था. तो ये सबसे लीडिंग जजमेंट हुआ करता था इस पॉइंट पे कि कंप्लेंट का डिसमिसल और क्या आप एक फ्रेश कंप्लेंट नए फैक्ट्स पे आप ला सकते हैं या नहीं. तो ये तो मैं आपको एकेडमिक पर्पस के लिए बता रहा हूँ. मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप कौन से जजमेंट को कोट करिए एग्ज़ाम में, वो होगा पूनम चंद जैन एंड अनदर वर्सेस फजरू. 15 अक्टूबर 2004 को डिसाइड हुआ था. देखिए एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब मैं AIR SSC की बात करता हूँ तो आपकी टर्मिनोलॉजी होगी इट इज़ रिपोर्टेड. जब मैं बताता हूँ 15 अक्टूबर 2004 तो मैं यूज़ करता हूँ वर्ड्स क्या, इट इज़ डिसाइडेड नॉट रिपोर्टेड. तो जो डिसीजन की डेट है मैं बताता हूँ वो है 15 अक्टूबर 2004. और जब AIR या किसी भी लॉ रिपोर्टर में होता है तो वी यूज़ द टर्म इट इज़ रिपोर्टेड. ठीक है, तो यू विल ऑल्सो यूज़ द टर्मिनोलॉजीज लाइक दिस. तो पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू में जो मेन पॉइंट था वो ये था कि मान लीजिए आप एक केस लाए, कंप्लेंट लाए मैजिस्ट्रेट के सामने, डिसमिस हो गया. अब जो डिसमिस हो गया है तो आप जानते हैं कि आप फ्रेश क्या कहते हैं सेम कंप्लेंट को दोबारा नहीं ला सकते. ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ इशू एस्टॉपल एंड रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सटेंड्स टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एज वेल.
वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी चलता है, ऐसा मत समझ लीजिएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, यू कमिटेड अ स्मॉल एरर, और आपका जो लॉयर था, आपने तो अक्सर क्या होता है कि कंप्लेंट आप तो नहीं ड्राफ्ट करते, लॉयर ड्राफ्ट करता है। तो जब ड्राफ्टिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हो गई और उस मिस्टेक की वजह से प्राइमा फेसाई केस ही नहीं मेड आउट हुआ, मैजिस्ट्रेट ने डिसमिस कर दिया, या मैजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पढ़ी और उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, उसने डिसमिस कर दिया बिना स्पीकिंग ऑर्डर के, या उसने अपना माइंड ही नहीं अप्लाई किया आपकी कंप्लेंट पे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप एक फ्रेश कंप्लेंट सेम फैक्ट्स पे प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? आर यू एम्पावर्ड टू डू दैट? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल अंडर सेक्शन 203 ऑफ द CRPC will not be a bar to entertainment of second complaint on the same facts, but it will only be entertained in the exceptional circumstances. पहला क्या circumstances है जिसमें second complaint entertain हो सकती है? ये है कि the previous order of dismissal of complaint was passed on an incomplete record और अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कंप्लेंट। पहला ग्राउंड क्या है कि मटेरियल पूरी तरीके से आए नहीं थे, मैजिस्ट्रेट पूरी तरीके से केस समझा नहीं और उसे सीधे डिसमिस कर दिया। दूसरा ग्राउंड क्या है? द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल वाज मैनिफेस्टली अब्सर्ड, अनजस्ट और फूलिश। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किए, मैंने नहीं किए। तो और इतने स्ट्रॉन्ग शब्द इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मान लीजिए इतना परवर्स ऑर्डर है कि सारे मटेरियल होने के बाद भी मैजिस्ट्रेट ने बिना दिमाग अप्लाई किए डिसमिस कर दिया कंप्लेंट को, तो ऐसे केस में भी सेकंड कंप्लेंट यू कैन प्रेजेंट, ऑलराइट, फ्रेश कंप्लेंट, यू कैन प्रेजेंट अ फ्रेश कंप्लेंट ऑफ द सेम नेचर। तीसरा ग्राउंड क्या है? वेयर न्यू फैक्ट्स which could not with reasonable diligence have been brought on record in previous proceedings have been adduced। अब मान लीजिए जो आप सेकंड कंप्लेंट लाए हैं, हालांकि वो पिछली कंप्लेंट से रिलेट करती है इन सब्सटेंस, लेकिन इस कंप्लेंट में कुछ ऐसे नए फैक्ट्स हैं जो आप पिछली कंप्लेंट में नहीं ऐड कर पाए थे, लेकिन अब आप ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर ऑफ दैट। और पिछली कंप्लेंट में आप रीजनेबल डिलीजेंस के बाद भी उससे अवेयर नहीं हो पा रहे थे, सो यू फाउंड सम न्यू फैक्ट्स विच वाज नॉट देयर अर्लियर। तो इस केस में भी सेकंड कंप्लेंट इज एडमिसिबल। सो द सुप्रीम कोर्ट सेज फर्दर it cannot be said to be in the interest of justice that after a decision has been given against the complainant upon a full consideration of his case, he or any other person should be given another opportunity to have his complaint inquired into। ये जनरल रूल है, दिस इज द जनरल रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर बताया कि अगर आपका केस पूरी तरीके से मैजिस्ट्रेट ने मटेरियल कंसिडर करके अपना दिमाग अप्लाई करके डिसमिस किया है और ऑर्डर रिफ्लेक्ट करता है, स्पीकिंग ऑर्डर दिख रहा है उसमें, इट शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर को लीगल टर्म्स में मतलब होता है एन ऑर्डर जिसमें रीजंस लिखे हुए हैं, अच्छे रीजंस लिखे हुए हैं। तो इन दैट सिचुएशन जनरल रूल इज दिस कि आप सेकंड कंप्लेंट नहीं ला सकते। पर एक्सेप्शनल सिचुएशंस में क्या हो सकता है? एक्सेप्शनल सिचुएशंस 3 हैं कि मैजिस्ट्रेट प्रीवियस ऑर्डर वाज पास्ड ऑन एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कंप्लेंट, or it was manifestly absurd, unjust or foolish, or where new facts could not be with reasonable diligence have been brought on record in previous proceedings। ठीक है, ये 3 सिचुएशन है आपके पास। इसके अलावा जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज दिस कि you can not produce same complaint, same material on the same facts, which has been dismissed by the magistrate
बाय अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। तो ये जनरल रूल है। तो जब भी आप आंसर शुरू करेंगे तो जनरल रूल के बाद एक्सेप्शनल रूल लिखेंगे। एक्सेप्शनल रूल पहले लिखने के बाद जनरल रूल नहीं लिखेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये सुप्रीम कोर्ट तो आपको जजमेंट बता रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर इन एग्जाम यू राइट जनरल रूल फर्स्ट एंड देन राइट द एक्सेप्शनल सिनेरियोस। तो एक सवाल इस पे और उठता है कि मान लीजिए अगर वो मर जाए, कंप्लेनेंट मर जाए, तो क्या मान लीजिए कंप्लेंट आई, मैजिस्ट्रेट ने उस पर हियरिंग कंडक्ट की, उसने पाया कि नहीं केस उनका स्ट्रांग है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग केस, आगे बढ़ गया, इन द मीन वाइल कंप्लेनेंट मर जाता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या उसके लीगल है, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं कंप्लेंट को, आर दे इन अ पोजिशन टू कंटिन्यू द कंप्लेंट। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हुआ था आपका चांद देवी वर्सेस मंजू के भूमातनी में के केस में। इसका साइटेशन है क्रिमिनल अपील नंबर 1860 ऑफ 2017। ठीक है, साइटेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने काफ़ी जजमेंट्स रेफर किए, जैसे अश्विन नानू भाई व्यास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और बाकी के पुराने प्रोविजंस जैसे जिमी जहांगीर वर्सेस बॉली हिंडले रिप्रेजेंटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी 2004 में हुआ था, इसको भी रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि इसके आंसर को पाने के लिए हमें सेक्शन 302 ऑफ द सीआरपीसी में जाना होगा। और 302 ऑफ द सीआरपीसी में जब हम जाते हैं तो क्या लिखा है, परमिशन टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, एनी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग और ट्राइंग अ केस में परमिट अ प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से करवा सकता है, अदर देन अ पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर, but no person other than the advocate general, government advocate or public prosecutor or assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission. ठीक है, provided no police officer shall be permitted to conduct the prosecution if he has taken part in the investigation into an offence with respect to which the accused is being prosecuted. सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो पर्सनली और बाय अ प्लीडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेक्शन की रीजनिंग उठाई और बोला कि अगर कंप्लेनेंट मर गया ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो ऑब्वियसली अगर हम 302 को देखते हैं तो मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू अलाउ द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, और ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए भी ज़रूरी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट यूज दिस वेरी सेक्शन एंड आंसर्ड द इशू इन अफर्मेटिव। ही सेड कि हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंडक्ट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ऑलराइट, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो यही कहता है, एनी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग अ केस में परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन। तो एनी पर्सन को मार्क कर लीजिए, फिर जो अदर देन द पुलिस इंस्पेक्टर वो आता है, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल सिनेरियो, क्योंकि पुलिस वालों को जनरली प्रोसिक्यूट करने नहीं देते, स्पेशली दोज हु हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस। क्योंकि बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर पे बार क्यों है, क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर को रियलिटीज़ का भान है, ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रियलिटीज़। लेजिस्लेचर को पता है कि जो इंस्पेक्टर की रैंक के बिलो के जो ऑफिसर्स होते हैं, दे आर यूजुअली नॉट अवेयर ऑफ द लीगल प्रोविजंस और द लीगलिज्म दैट गोज इनसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसे केस में उनको परमिट करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया उसको क्यों नहीं अलाउ कर सकते? तो आपको याद होगा मैंने जब एफआईआर की स्टेज लिया था तो मैंने इससे केस लॉ भी दिया था। अगर इन्वेस्टिगेटर ही प्रोसिक्यूटर भी बन जाए तो हमारे कोर्ट के पर्पस के लिए इट इज़ फ्राउंड अपॉन। सेम पर्सन ही अगर प्रोसिक्यूट भी करेगा तो इम्पार्शियल कैसे हो सकता है? He is not impartial. We cannot allow the complainant to be the investigator or investigator to be the prosecutor. ठीक है? So I have given you the reasoning under the FIR column also, if you remember. Same person को जिसने investigate किया तो वो obviously bias रहेगा, अगर उसने चार्जशीट दायर किया तो obviously bias ही रहेगा। तो how can you presume कि वो prosecution unbiased होके conduct करेगा? नहीं करेगा, वो biased होके ही conduct करेगा। We want the prosecution कि वो भी अनबायस्ड रहे। इन अ क्रिमिनल ट्रायल इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू बी अनबायस्ड।
सिर्फ अक्यूज का डिफेंस ही अपने क्लाइंट को लेके बायस्ड हो सकता है, ठीक है। बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ड्यूटी, थियोरेटिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये बोला जाता है कि आपकी ड्यूटी कोर्ट के लिए भी है, तो यू शुडंट बी अनबायस्ड इन दैट सिचुएशन। तो दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। 321 पे जब हम आएंगे तो उससे भी डील करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, क्या ड्यूटी है। लेकिन इस इश्यू का आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्या लीगल एयर कर सकते हैं? तो यू विल ओनली डू दिस, यू विल रीड द फैक्ट्स ऑफ द केस विद 302 ऑफ द CRPC, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया, एंड आंसर द इश्यू इन अफर्मेटिव, ठीक है। और एप्लीकेशन किसके थ्रू करेंगे? प्राइवेट कर सकते हैं या प्लीडर के भी थ्रू कर सकते हैं? तो आंसर है चाहे आप प्राइवेट करिए चाहे आप प्लीडर के थ्रू करिए, यू विल बी अलाउड, ऑलराइट। अब एक नेक्स्ट इश्यू अराइज होता है कि अगर 202 की प्रोसीडिंग हुई है तो क्या पुलिस कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड when the magistrate has ordered inquiry under CRPC, while submitting the report under 202, if the police investigation has been ordered, तो क्या पुलिस को बाउंड है अरेस्ट करना क्या कहते हैं उसको, अक्यूज्ड को, जो कंप्लेंट में अक्यूज्ड बनाया गया है। तो आपको एक बात मैं बताता हूँ, जहाँ पे एविडेंस सफिशिएंट होता है ना, जहाँ पे एविडेंस इज सफिशिएंट, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि जनरली पुलिस वाले क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं अक्यूज्ड को एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ चार्जशीट। आप अगर 170 देखेंगे, सेक्शन 170 ऑफ द CRPC, तो जब चार्जशीट भेजी जाती है तो 170 इज रेड विद 173 सबसेक्शन 2, और उसमें क्या लिखा है कि अगर ऑफेंस, उसका मैं फर्स्ट पार्ट पढ़े दे रहा हूँ। If upon the investigation of this chapter, it appears to the officer in charge of the police station there is sufficient evidence or a reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody of a magistrate empowered to take cognizance of offence upon a police report and to try the accused or committed for trial. And if the offence is bailable, अगर bailable offence है तो और अक्यूज सिक्योरिटी देने में सक्षम है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उससे वो सिक्योरिटी ले लेगा और उससे वो बॉन्ड भरवा लेगा, बेल बॉन्ड भरवा लेगा कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होंगे एज एंड सो सिचुएशन डिमांड। तो जब भी चार्जशीट भेजी जाती है तो ये होता है कि अक्यूज को भी मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में ले जाना होता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट ही इज टू बी अरेस्टेड। तो चार्जशीट जनरली अगर मान लीजिए दायर हुई तो 100% सोच लीजिए द पर्सन विल बी अरेस्टेड if the offence is non-bailable. Only in the situation of bailable offence the situation will be different. तो क्या यही कंसेप्ट 202 में भी इनकॉर्पोरेट होता है या नहीं? तो इसके लिए रीजनिंग क्या है कि देखिए, पहले तो आप एक बात समझिए, 202 पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज की बात है, ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। 202 की इन्वेस्टिगेशन इज अ पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज, और इसकी इन्वेस्टिगेशन का लिमिटेड पर्पस क्या है? लिमिटेड पर्पस ये है कि मैजिस्ट्रेट के ग्राउंड के माइंड से हेजिटेशन हटाना, दैट इज द लिमिटेड पर्पस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो और आपको पता है कि 156(3) और पावर टू अरेस्ट जो चैप्टर 12 में है वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाती है 202 की इन्वेस्टिगेशन में। 202 की इन्वेस्टिगेशन इज इन अ डिफरेंट लाइट। I've already explained you in the matters of FIR, final reports and several other provisions, यहाँ पे मैं बार बार बताता आ रहा था। ध्यान रखिएगा 202 की इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट। ये इसका पर्पस सिर्फ होता है मैजिस्ट्रेट के दिमाग से हेजिटेशन हटाना, एक प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश करना। द पुलिस ऑफिसर चार्जशीट नहीं सबमिट करता है 202 में, जैसे कि वो 173(2) में करता है, रेड विद 170 ऑफ द CRPC। जब चार्जशीट सबमिट करता है ना, तो अक्यूज्ड को 170 मैंडेट करता है कि एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ चार्जशीट आपको लगता है एविडेंस सफिशिएंट है, तो यू हैव टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड फॉरवर्ड हिम टू द कस्टडी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। कस्टडी ऑफ द मैजिस्ट्रेट का क्या मतलब? वो पकड़ के ले ही जाएगा उसको, और फिर उसे क्या कहते हैं, अरेस्ट ही करना होगा उस पर्पस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू पे बोला था कि क्या 202 की रिपोर्ट सबमिट करते हुए भी, मान लीजिए पुलिस वाले आए, मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया कि 202 की इन्वेस्टिगेशन करो और मेरे दिमाग में कुछ हेजिटेशन है इस कंप्लेंट को लेके, पता करो प्राइमा फेसाई केस है या नहीं।
पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो पाते हैं कि नहीं यार सफिशिएंट मटेरियल तो है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अरेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि वो 170 में करते थे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ चार्जशीट। ये नहीं अलाउड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कि कोई मैंडेट नहीं है अरेस्ट करने का इस तरीके से, ठीक है, एंड द अरेस्ट इज नॉट वारंटेड इन दीज केसेस। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन द केस ऑफ रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसने यही बात बोली कि एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर सबमिटिंग अ रिपोर्ट अंडर 202 टू द मैजिस्ट्रेट, यू आर नॉट सबमिटिंग अ चार्जशीट। आप बस, और जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो बस मैजिस्ट्रेट के दिमाग से हेजिटेशन हटाने के लिए और प्राइमा फेसी केस को एस्टैब्लिश करने के लिए, दैट्स इट। तो दैट इज़ वाई जो भी 170 चैप्टर 12 के जो रूल्स हैं 170 और 173 के सबसेक्शन 2 के, दैट नीड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 202। 202 में 173 की तरह पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजी जाती, ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो जब भी आपको ये माइंड में होगा तो यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टेजेस। अब एक इशू और है, वो क्या है? वो ये है कि मान लीजिए आपने कंप्लेंट सबमिट की और कंप्लेंट में आपने गलती से पार्टी का नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी और एड्रेस गलत लिख दिया। तो सवाल ये है कि क्या अमेंडमेंट अलाउ हो सकते हैं कंप्लेंट में? तो पहली बात तो अगर आप पूरी CRPC पढ़ डालेंगे तो अमेंडमेंट ऑफ कंप्लेंट का आपको कोई प्रोविज़न ही नहीं मिलेगा, कोई प्रोविज़न नहीं है फॉर अमेंडमेंट ऑफ कंप्लेंट। CPC में जैसे है ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 के रूल 17 में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए प्रोविज़न है, पर इन CRPC कोई प्रोविज़न नहीं है। तो क्या अलाउड है? इज़ इट अलाउड टू अमेंड कंप्लेंट? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात कही है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो रहा है तो आई विल आंसर यू डायरेक्टली कि जो कंप्लेंट जो जिसमें आप अमेंडमेंट करवा रहे हैं ये देखा जाएगा कि वो किस नेचर का है। क्या सब्सटैंशियल नेचर का है? क्या आप उसमें एडिशन कर रहे हैं, नए नए एडिशन, नए नए ऑफेंसेस ला रहे हैं? क्या वो मटेरियल नेचर का है, या वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन है कि आपसे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई, जैसे पार्टी का नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी या आपने एड्रेस गलत लिख दिया। मान लीजिए स्ट्रीट नंबर 17 था, आपने स्ट्रीट नंबर 18 लिख दिया या स्ट्रीट नंबर 16 लिख दिया। तो इट इज़ एन क्लरिकल एरर ऑफ अ वेरी फॉर्मल नेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर रेफरिंग सेवरल जजमेंट्स ऑन दीज पॉइंट्स and specially with judgment it referred UP Pollution Control Board versus Modi Distillery and others 1987 का जजमेंट था जो इस पॉइंट से डायरेक्टली डील करता था। उससे उन्होंने बोला कि अगर इस फॉर्मल एरर है, इतने छोटे लेवल का एरर है, तो इट कैन बी इजीली बी क्योर्ड by presenting a formal application for amendment even though there is no procedure in the CRPC for such। आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन दीजिए कि जो मैंने कंप्लेंट में जो एड्रेस लिखा है उसको करेक्ट करके गली नंबर स्ट्रीट नंबर 17 को स्ट्रीट नंबर 18 19 है जो भी करेक्ट एड्रेस है वो रीड किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट आपका अमेंडमेंट जो फॉर्मल एप्लीकेशन है फाइल पे रिकॉर्ड कर लेगा एंड इट विल बी कंटिन्यूड। फर्दर इफ वी गो, अगर amendment sought to be made relates to simple infirmity, छोटी मोटी mistakes हैं, which is curable by the means of formal amendment, and by allowing such amendment no prejudice could be caused to the other side, then notwithstanding the fact that there is no enabling provision in the code for entertaining such amendment, the court may permit such amendment to be made। लेकिन इसी के ठीक उल्टा, if the amendment sought to be made in the complaint does not relate to a curable infirmity or the same cannot be corrected by a formal amendment, or if there is likelihood of prejudice to the other side, the court shall not allow such amendment to be made। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बड़ा मटेरियल चीज़ ऑल्टर कर रहे हैं, अगर आप केस का नेचर ही कंप्लेंट में ऑल्टर किए दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कंप्लेंट की हर्ट की, अब आप उसको ग्रीवियस हर्ट बना रहे हो नए नए फैक्ट्स एलेज करके जो पहले नहीं आपने किए थे, तो नाउ ये मटेरियल नेचर का है, यू कैन नॉट बी अलाउड टू अमेंड इट। आप कंप्लेंट अमेंड नहीं कर सकते इस केस में, यू कैन नॉट बी अलाउड टू अमेंड द कंप्लेंट। दूसरा,
दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई आप ऐसा ऑल्टरेशन उसमें करते हैं जो अक्यूज्ड को प्रेजुडिस करेगा, वो नहीं अलाउड है। मान लीजिए आप एक नई पार्टी को ला रहे हो, ठीक है, जो अमेंडमेंट से, जो पहले आपकी ओरिजिनल कंप्लेंट में नहीं थी, तो ऐसे केस में तो उसको प्रेजुडिस कर जाएगा ना नई पार्टी को लाना। उसको कहेगा यार आप अगर मेरे खिलाफ केस था तो आपको पहले करना चाहिए था, तो यू हैव टू प्रेजेंट अ फ्रेश कंप्लेंट फॉर दैट, यू कैन नॉट बी अलाउड टू अमेंड इट, ठीक है। फिर क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा ना, अक्यूज प्रेजुडिस हो जाएगा, बहुत सारा एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है और उसको हो सकता है उसकी कॉपी भी ना मिली हो नए विटनेस नई पार्टी को जिसने आपने ऐड किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट हो सकता है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में कंसिडर करे, कोई कट एंड राइट रूल नहीं है। फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे कोर्ट में कंसिडर दैट प्रेजुडिस मे हैव बीन कॉज्ड टू सच पर्सन। तो ऐसे केस में ऐसा फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं कहा जा सकता, ये एक ऐसी इन्फॉर्मिटी है जो क्योरेबल नहीं है, तो इसके लिए अमेंडमेंट नहीं अलाउड होगा। ध्यान रखिए मैं अमेंडमेंट शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट लीडिंग केस है इस पॉइंट पे, और इससे आई थिंक मटेरियल इश्यूज जो आपके कंप्लेंट से रिलेटेड है आर डेल्ट विद। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दीज केस लॉज अंडर द स्टडी नोट सेक्शन, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाके निकाल लीजिएगा, डाउनलोड द पेज, जब स्टडी नोट के अंदर जाएं फिर उस सेक्शन में जाएं जिसमें नोट्स हैं, तो डाउनलोड द पेज, गेट इट प्रिंटेड आउट और अपनी एक फाइल और रजिस्टर बना लीजिए उसको लेके, देन हाईलाइट इट एंड डू विद इट एज यू प्लीज, ठीक है। वी आर डन विद द इशू ऑफ कंप्लेंट फॉर टुडे।